بسم اللہ ہوا ہے۔ خواب کی تعبیر جانتا ہے، بڑا عالم اور دانشمند ہے۔ شماس نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا اور پھر مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے شماس، تیری سمجھ میں کیا آتا ہے؟ سچ سچ کہہ دے اور مجھ سے کچھ نہ چھپانا۔ شماس کہنے لگا، اے بادشاہ، خدا نے تیری دعا منظور کر لی، وہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ اس خواب کی تعبیر بہت نیک ہے، وہ یہ کہ خدا تجھے ایک لڑکا دے گا، وہ تیری بڑی عمر کے بعد تیرا وارث ہوگا۔ لیکن اس میں ایک بات ہوگی جس کا بیان کرنا میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ابھی اس کی تفصیل کا وقت نہیں آیا۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہو گیا، اس کا ڈر جاتا رہا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو جب تعبیر پوری کرنے کا وقت آ جائے تو اسے پورا کر دیجیے، تاکہ میری خوشی پوری ہو جائے۔ میں اس سے محض خدا کی مرضی کا خواہاں ہوں۔ شماس نے دیکھا کہ بادشاہ پوری تعبیر سننے پر تلا ہوا ہے، تو اس سے کچھ بہانہ کر کے ٹال دیا۔ بادشاہ نے اپنے ملک کی تمام نجومیوں اور تعبیر گوئیوں کو بلایا۔ وہ سب حاضر ہوئے تو ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے اجازت مانگی کہ وہ بات کرے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو اس نے کہا، اے بادشاہ سن، تیرا وزیر شماس اس خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز نہیں ہے، لیکن اس نے اس وجہ سے نہیں بتایا ہے کہ تجھے پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے پوری تعبیر نہیں بتائی، لیکن اگر تو مجھے اجازت دے تو میں کہوں۔ بادشاہ بولا، یہ تعبیر گو بلا کم و کاست کے ڈال اور سچ سچ بتا۔ تعبیر گو نے کہا، تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس وقت تیرا وارث ہوگا جب تو بڑی عمر کو پہنچ چکا ہوگا، لیکن ریت کے ساتھ اس کا برتاؤ وہ نہ ہوگا جو تیرا ہے، بلکہ وہ تیرے دستور کے خلاف چلے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، اور اس کا وہی حشر ہوگا جو چوہے کو بلی کے ساتھ ہوا۔ خدا اس سے محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بلی اور چوہے کی کیا کہانی ہے؟ بلی اور چوہے کی کہانی۔ تعبیر گو نے کہا، خدا بادشاہ کی عمر دراز کرے۔ ایک بار ایک بلی رات کے وقت ایک جھاڑی میں گئی کہ کچھ شکار مارے، لیکن اسے کچھ ہاتھ نہ لگا، بلکہ وہ سردی اور بارش کی وجہ سے بیمار اور کمزور ہو گئی، اور اپنے دل میں کہنے لگی کہ مطلب نکالنے کے لیے کوئی چال چلنی چاہیے۔ اتنے میں اسے ایک درخت کے نیچے ایک بل دکھائی دیا۔ وہ اس کے قریب جا کر سونگھنے اور میاؤں میاؤں کرنے لگی، یہاں تک کہ اسے پتا چل گیا کہ بل کے اندر ایک چوہا ہے۔ ارد گرد گھومنے لگی اور ارادہ کیا کہ چوہے کو پکڑنے کے لیے اندر گھسے۔ جب چوہے کو یہ معلوم ہوا تو اس نے بلی کی طرف پیٹ کر کے پاؤں ٹیک لیے تاکہ بل کا منہ بند ہو جائے اور بلی اندر نہ آ سکے۔ یہ دیکھ کر بلی کمزور آواز سے کہنے لگی، بھائی تو یہ کیا کرتا ہے؟ میں تو تیرے پاس پناہ لینے آئی ہوں تاکہ تو میرے حال پر رحم کھا کر مجھے آج رات اپنے بل میں رہنے دے۔ بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہوں، چلنے پھرنے سے معذور ہوں اور بڑی مشکل سے اس جھاڑی تک آئی ہوں۔ کتنی ہی بار میں نے موت کی دعا مانگی ہے کہ مجھے آرام مل جائے۔ اب میں سردی اور بارش کی ماری تیرے دروازے پر پڑی ہوں اور تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مہربانی کر اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے لے اور اپنے بل کے دروازے ہی پر مجھے پڑا رہنے دے۔ میں پردیسن اور مسکین ہوں۔ مثال ہے کہ جو پردیسی مسکین کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، قیامت کے روز اسے جنت دی جاتی ہے۔ اے میرے بھائی، تو اس بات کا مستحق ہے کہ میرا ثواب لے اور مجھے اجازت دے دے کہ میں آج رات صبح تک تیرے ہاں گزار دوں اور پھر چلتی بنوں۔ بلی کی یہ بات سن کر چوہا بولا، تو کیسے میرے بل میں آ سکتی ہے؟ تو میری قدرتی دشمن ہے اور تیری غذا میرا گوشت ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تو مجھے کہیں دھوکہ دے رہی ہو، کیونکہ یہ تیری فطرت ہے اور تیرا عہد و پیما پر کوئی بھروسہ نہیں۔ مثال ہے کہ بد اتوار شخص کے سپرد خوبصورت عورت کو نہیں کرنا چاہیے، نہ فقیر نادار کے سپرد مال کو، نہ آگ کے سپرد سوکھی لکڑی کو۔ اس لیے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ عقل مندوں نے بھی کہا ہے کہ جب دشمن کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ بلی نے نہایت دھیمی آواز اور اداس چہرہ بنا کر کہا، تیرا کہنا ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتی، لیکن درخواست کرتی ہوں کہ پچھلی باتیں معاف کر جو میری اور تیری فطری دشمنی کی وجہ سے پیش آئی ہیں۔ بزرگ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ جو مخلوق دوسری مخلوق کو معاف کر دیتی ہے تو اس کا خالق بھی اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ میں کل تک تیری دشمن ضرور تھی، مگر آج تیری دوستی کی طلبگار ہوں۔ بقول کسی کہ اگر تو اپنے دشمن کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ اور بھائی، میں تو خدا کے سامنے تجھ سے عہد و پیما کرتی ہوں کہ میں تجھے کبھی نقصان نہ پہنچاؤں گی۔ علاوہ اس کے اب مجھ میں اس کی طاقت بھی نہیں، اس لیے خدا پر بھروسہ کر کے میرے ساتھ بھلائی کر، اور یہ میرے بھائی میرے عہد و پیما پر بھروسہ رکھ۔ چوہا بولا، میں کیسے اس شخص کا عہد و پیما مان سکتا ہوں جس کی دشمنی میرے ساتھ ازلی ہے اور جس کا دستور ہی
मुझे धोखा देना हो। अगर हमारी दुश्मनी सिवा खून के और किसी चीज की होती तो भी खैरियत थी, लेकिन वो तो रूहों के दरमियान फितरी दुश्मनी है। मिसाल है कि जो कोई अपने आप को दुश्मन के सुपर्द कर देता है वो ऐसा है जैसे कोई अपना हाथ काले सांप के मुंह में दे दे। बिल्ली ने नाराज होकर कहा, अब मैं परेशान हो गई हूँ और मेरा जिस्म कमजोर हो गया है। नज़ा की हालत है और अनकरीब तेरे दरवाजे पर मेरी जान निकल जाएगी और मेरा गुनाह तेरी गर्दन पर होगा, क्योंकि तू मुझे मुसीबत से निजात दे सकता है और नहीं देता। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ये सुनकर चूहा खुदा से डरा, उसे तरस आ गया और वो अपने दिल में कहने लगा, जो खुदा से अपने दुश्मन पर मदद लेना चाहता है उसे चाहिए कि दुश्मन के साथ रहम और नेकी से पेश आए। खुदा पर भरोसा करके इस बिल्ली को मरने से बचाए लेता हूँ ताकि मुझे इसका स्वाब मिले। ये कहकर चूहा बाहर निकल आया और बिल्ली को घसीट कर अपने बिल में ले गया। बिल्ली थोड़ी देर तक उसके पास चुपचाप बैठी रही, यहाँ तक कि उसमें ताकत आ गई। वो सुस्ता चुकी और जरा दम ले लिया तो वो अपनी बीमारी, कमजोरी और दोस्तों की कमी पर अफसोस करने लगी। चूहा उसको दिलासे देने लगा और उसकी दिलजोई करने लगा। उसके करीब आकर कभी बैठता, कभी उसके आसपास फिरता। इतने में बिल्ली बिल के मुंह पर टेक लगाकर लेट गई ताकि चूहा उसके कब्जे में रहे, निकल ना भागे। जब चूहा बिल से निकलने लगा तो जाहिर था कि बिल्ली के पास से गुजरे। जो ही वो बिल्ली के करीब आया उसने उसे पकड़कर पंजे में दबोच लिया, उछालने, लुढ़काने, नोचने और तकलीफ देने लगी। अब चूहा खुदा से दुआई मांगने और निजात की दरख्वास्त करने लगा और नाराज होकर बिल्ली से कहा कि वो अहद व पैमा कहाँ गया जो तूने बांधा था, और कहाँ हुई वो कस्में जो तूने खाई थी। क्या यही बदला है जो तू मुझे दे रही है? मैंने तुझे अपने बिल में दाखिल किया और अपनी जान तेरे सुपर्द कर दी, लेकिन किसी ने सच कहा है कि जो अपने दुश्मन के साथ अहद बांधता है वो अपनी जान को हलाकत में डालता है। खैर, मुझे अपने पैदा करने वाले पर भरोसा है कि वो मुझे तेरे पंजे से छुड़ाएगा। चूहा यही कह रहा था और बिल्ली इरादा कर ही रही थी कि उसे चट कर जाए। इतने में एक शिकारी आ पहुंचा जिसके पास शिकारी कुत्ते थे। एक कुत्ते ने बिल के पास आकर देखा कि अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसने ख्याल किया कि बिल के अंदर लोमड़ी किसी चीज का शिकार कर रही होगी। ये सोचकर कुत्ता नीचे की तरफ दौड़ा कि उसका शिकार करे और बिल्ली को पकड़कर खींचा। जब बिल्ली कुत्ते के पंजे में फंस गई तो उसे अपनी जान के लाले पड़ गए। उसने चूहे को छोड़ दिया जो अभी जिंदा था, बल्कि घायल तक नहीं हुआ था, मगर बिल्ली को शिकारी कुत्ता खींचकर बाहर निकाल लाया और उसकी गर्दन तोड़कर फेंक दी। और ये मिसाल ठीक उतरी कि जो रहम करता है उस पर किसी न किसी दिन रहम किया जाता है, और जो जुल्म करता है वो फौरन जुल्म का बदला पा लेता है। ए बादशाह, यह है जो उनके साथ पेश आया। लिहाजा किसी को यह ना चाहिए कि भरोसा करने वाले को दगा दे, क्योंकि जो शख्स दगा देगा और खयानत करेगा उसका वही हशर होगा जो बिल्ली का हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी, और जो नेकी करेगा उसका सवाब पाएगा। लेकिन ए बादशाह, अफसोस न कर और गमगीन ना हो, क्योंकि जुल्म व जूर करने के बाद तेरा बेटा तेरी अच्छी आदतें इख्तियार कर लेगा। और ये फाजिल शमास जो तेरा वजीर है चाहता है कि तुझसे कोई ऐसी बात न छुपाए जिसका ताल्लुक तुझसे है, और उसका ऐसा करना बहुत ठीक है, क्योंकि मिसाल है कि वही शख्स सबसे ज्यादा डरता है जिसका इल्म सबसे ज्यादा हो और जो भलाई करने पर सबसे ज्यादा तुला हुआ हो। ये सुनकर बादशाह कायल हो गया और हुक्म दिया कि इन्हें बहुत इनाम दिया जाए। बाद बादशाह ने उन्हें रुखसत किया और उठकर अंदर गया और कुछ सोचने लगा। जब रात हुई तो अपनी एक बीवी के साथ हम बिस्तर हुआ जो उसे सबसे ज्यादा अजीज और प्यारी थी। 4 महीने गुजरने के बाद बच्चा उसके पेट में किलबिलाने लगा। उसे बेहद खुशी हुई। उसने बादशाह को खबर दी। बादशाह बोला कि मेरा ख्वाब ठीक निकला, आइंदा खुदा मददगार है। बादशाह ने रानी को बेहतरीन महल रहने के लिए दिया, उसे बड़ी इज्जत और हुर्मत से रखा और उसे बहुत कुछ इनाम दिया। फिर उसने एक गुलाम को बुलाकर कहा, शमास को बुला ला। शमास आया तो बादशाह ने उससे अपनी बीवी का हामला होना बयान किया और खुश होकर कहा कि मेरा ख्वाब ठीक निकला और मेरी मुराद पर आई। यकीन है कि इस हमल से बेटा पैदा होगा और मेरी बादशाहत का वारिस होगा। ए शमास, तेरी क्या राय है? शमास चुप रहा, उसने कोई जवाब न दिया। बादशाह बोला, क्या बात है कि तू मेरी खुशी में शामिल नहीं होता और मुझे जवाब नहीं देता? ए शमास, क्या ये बात तुझे बुरी मालूम होती है? शमास ने बादशाह के आगे अदब से सर झुका लिया और कहा, ए बादशाह, खुदा तेरी उम्र दराज करे। दरख्त के साये में बैठने से क्या फायदा अगर उसमें से आग निकलने लगे? साफ शराब पीने में क्या मजा अगर वो गले में फंस रहे? और ठंडा मीठा पानी पीने से क्या फायदा अगर पीने वाला उसमें डूब जाए? ए बादशाह, मैं खुदा का और तेरा गुलाम हूँ, लेकिन मिसाल है कि 3 चीजों के बारे में समझदार आदमी को बात नहीं करनी चाहिए जब तक वो पूरी न हो जाए। एक मुसाफिर के बारे में
जब तक वो सफर से न लौट आए, दूसरी सिपाही के बारे में जब तक वो दुश्मन को ज़ेर न कर ले, तीसरी हामला औरत के बारे में जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। ये कहने के बाद कि अक्लमंदों को 3 चीज़ों के बारे में जुबान नहीं खोलनी चाहिए, शमास ने बादशाह से कहा, ए बादशाह सुन, अधूरी बात के बारे में जुबान खोलने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे उस दरवेश की जिसके सर पर घी उलट गया था। बादशाह ने पूछा कि उस दरवेश की क्या कहानी है और उसके साथ क्या गुजरी। शमास ने कहा, ए बादशाह, किसी शहर में एक शरीफ के यहाँ एक दरवेश रहता था जिसे हर रोज उस शरीफ के यहाँ से खाना मिलता, 3 रोटियां, थोड़ा सा घी और शहद। उस शहर में घी महंगा था, इसलिए वो दरवेश घी को एक हांडी में जमा करता जाता, यहाँ तक कि वो भर गई। उसने इस डर से कि कहीं चोरी ना हो जाए अपने ऊपर छींके में लटका दिया। एक रात जबकि वो डंडा लिए अपने फर्श पर बैठा सोच रहा था कि घी इस शहर में महंगा है, मुझे सबका सब घी बेचकर अपनी एक भेड़ खरीदनी और उसमें एक किसान के साथ साझा करना चाहिए। पहले साल उसकी एक नर पैदा होगा, फिर मादा, दूसरे साल पहले मादा फिर नर, फिर उन भेड़ों के भी नर और मादा बच्चे होंगे, यहाँ तक कि एक बड़ा गल्ला हो जाएगा। उसके बाद मैं अपना हिस्सा अलग कर लूंगा और उसमें से एक हिस्सा बेच डालूंगा और उसके दामों से फिलहाल जमीन मोल लूंगा, उसमें बाग लगाकर एक आलीशान महल बनाऊंगा, कपड़े और पोशाकें बनवाऊंगा, गुलाम और बांदियां खरीदूंगा, फिर फिलहाल ताजर की बेटी से शादी करूंगा और ऐसी वलीमे की दावत दूंगा कि कभी न हुई हो, क्योंकि उसके लिए मैं जानवर ज़िबा करूंगा, उम्दा खाने, मिठाइयाँ, शक्कर पारे बनवाऊंगा और उसमें मौसीकी दानों, उस्तादों और सारे बाजों को इकट्ठा करूंगा, फूल, खुशबुएं और खुशबूदार बूटियां मुहैया करूंगा। तमाम अमीरों, गरीबों, आलमों, रईसों और हुकाम को दावत दूंगा। जो शख्स जिस चीज की फरमाइश करेगा ला मौजूद करूंगा। तरह तरह के खाने और शराबें मंगवाऊंगा और डंडोरा पिटवा दूंगा कि जिस किसी को जिस चीज की जरूरत हो ले जाए। जब दुल्हन की मुंह दिखाई हो चुकेगी तो मैं उससे हम बिस्तर होऊंगा, उसके हुस्न जमाल के मजे लूटूंगा, खूब खाऊंगा, पीऊंगा और लुत्फ उठाऊंगा और अपने दिल में कहूंगा कि अब मेरी मुराद बर आई और ज़हद व इबादत से छुटकारा मिला। उसके बाद मेरी बीवी को हमल रह जाएगा, उसके एक लड़का पैदा होगा, मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं दावतें दूंगा और बड़ी नाज नेमत से उसे पालूंगा, उसे हिकमत, अदब और हिसाब सिखाऊंगा, उसका नाम लोगों में मशहूर करूंगा, मजलिसों में बैठकर उस पर नाज करूंगा, उसे भलाई करने का हुक्म दूंगा और वो मेरी मुखालफत नहीं करेगा। बुरी बातों से उसे रोकूंगा और उसे तंबिया करूंगा कि खुदा से डरे, नेकी करे और उसे उम्दा उम्दा और खूबसूरत खूबसूरत तोहफे दूंगा। अगर मैं देखूंगा कि वो खुदा की फरमान बरदारी करता है तो उसे और ज्यादा तोहफे तहाइफ दूंगा, और अगर मैं देखूंगा कि वो गुनाह की तरफ मायल है तो इसी डंडे से उसकी खबर लूंगा। ये कहकर उसने अपने ख्याली बेटे को मारने के लिए डंडा उठाया और वो जाकर घी की हांडी पर पड़ा जो छींके में लटक रही थी। वो टूट गई, उसके टुकड़े दरवेश के सर पर आ गिरे और घी उसके सर, कपड़ों और दाढ़ी पर बहने लगा और लोगों ने उससे इबरत हासिल की। ए बादशाह, यही वजह है कि इंसान को किसी बात पर जुबान नहीं खोलनी चाहिए जब तक वो हो न जाए। बादशाह ने कहा, ए वजीर, तू सच कहता है, तू बड़ा अच्छा वजीर है क्योंकि तू सच बोलता है और अच्छा मशूरा देता है। इसी वजह से तेरा रुतबा मेरे नजदीक तेरी ख्वाहिश के मुआफिक है और मैं तुझे हमेशा मानता हूँ। शमास ने बादशाह के आगे अदब से सर झुका लिया, उसे दुआ दी कि तेरी नेमतें हमेशा कायम रहें और खुदा तेरी उम्र दराज करे और तेरा रुतबा बुलंद करे। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपाता, ख्वाह वो पोशीदा हो या एलानिया। तेरी रजामंदी में मेरी रजामंदी है और तेरी नाराजगी में मेरी नाराजगी। सिवा तेरी खुशी के मेरी और कोई खुशी नहीं, और यह मुमकिन नहीं कि अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे नींद आ सके, क्योंकि तेरे एहसान की वजह से खुदा ने मुझे तमाम अच्छी चीजें दी हैं। मैं खुदा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने फरिश्तों से तेरी निगहबानी करे और जब तू उससे मिले तो वो तुझे अच्छा सवाब दे। ये सुनकर बादशाह खुश हो गया और शमास उससे रुखसत होकर चला गया। कुछ दिनों के बाद रानी के यहाँ बेटा पैदा हुआ। खुशखबरी देने वालों ने जाकर बादशाह को खुशखबरी दी कि तेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। खुदा का बड़ा शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, शुक्र है खुदा का, उसने नाउम्मीदी के बाद मुझे औलाद दी और वो बंदों पर बड़ा शफीक और मेहरबान है। उसके बाद बादशाह ने तमाम रियाया के नाम खत भेजे ताकि उन्हें खबर हो जाए और उन्हें अपने यहाँ बुलाया और तमाम अमरा, रऊसा, उलमा और हुकाम जो उसके मातहत थे हाजिर हुए। ये तो बादशाह का हाल हुआ, अब उसके बेटे का हाल सुनो। सारे मुल्क में शादियां ने बजने और हर तरफ से लोग आने लगे। आलिम, फुलसफी, अदीब और हकीम आकर दरबार में दाखिल हुए और अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। उसके बाद बादशाह ने 7 बड़े वजीरों को हुक्म दिया जिनका सरदार शमास था कि वो अपनी अपनी हिकमत के मुताबिक इस मसले पर तकरीर करें जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है।
वजीरों का सरताज शमास सबसे पहले उठा और बादशाह से तकरीर करने की इजाजत चाही। बादशाह ने इजाजत दे दी। वजीर ने कहना शुरू किया कि शुक्र है खुदा का जो हमें अदम से वजूद में लाया और अपने शाही बंदों पर जो आदिल और मुनसिफ हैं ये एहसान किया कि उन्हें हुकूमत और नेक रवी दी, उनके हाथ से उनकी रैयत को रोजी अता की, बलखसूस हमारा बादशाह जिसके जरिए से खुदा ने हमारे मुल्क के मुर्दों को जिंदा किया, उसने हमें नेमतों से पार दिया, उसकी सलामती की वजह से हमें ऐश व इशरत, इत्मीनान और इंसाफ नसीब हुआ। कौन सा बादशाह अपनी रैयत के साथ वो काम करता है जो इस बादशाह ने किया, हमारी ज़रूरियात को पूरा करना, हमारे हकूक देना, एक दूसरे में इंसाफ करना, गफलत न करना और हमारे ऊपर से जुल्म और सितम को दूर करना। ये खुदा का लोगों पर एहसान है अगर उनका बादशाह उनके कामों में दिलचस्पी ले और उन्हें उनके दुश्मनों से बचाए, क्योंकि दुश्मन का इंतहाई मकसद यही होता है कि वो अपने दुश्मन को ज़ेर करके उन्हें अपने कब्जे में ले आए। बहुत से लोग अपने बेटों को बादशाहों के पास खिदमत के लिए भेजते हैं और उनके पास गुलामों की तरह रहते हैं ताकि वो उन्हें दुश्मनों से बचाएं। हमारी हालत यह है कि इस बादशाह के ज़माने में किसी दुश्मन ने हमारे मुल्क में कदम नहीं रखा। यही बड़ी नेमत और सआदत है जिसकी तारीफ से लोग आजिज हैं, क्योंकि वो तारीफ से बारातर है। और तू ए बादशाह इस बड़ी नेमत का अहल और मुस्तहक है और हम तेरी पनाह और तेरी कुव्वत के साए में हैं। खुदा तुझे बेहतरीन सवाब दे और तेरी उम्र दराज करे। हम इससे पहले खुदा के आगे हाथ जोड़कर दुआ मांगते थे कि वो हमारी दुआ कबूल करे और तुझे हमारी खातिर जिंदा रखे और एक नेक वक्त बेटा दे जिससे तेरी आंखें ठंडी हो। खुदा ने हमारी दरख्वास्त सुन ली और दुआ कबूल कर ली और हमें बहुत जल्द खुशी अता की। जिस तरह के किसी तालाब में मछलियों को बादशाह ने पूछा कि मछलियों का क्या किस्सा है और ये किस तरह हुआ। मछलियों और झींगे की कहानी। शमास ने कहा, ए बादशाह, किसी जगह एक तालाब था और उसमें चंद मछलियां रहती थी। एक बार ऐसा इत्तफाक हुआ कि उसका पानी सूख गया और मछलियां एक दूसरे के करीब आ गईं। क्योंकि उनके लिए पानी काफी न था, वो मरने के करीब हो गईं और कहने लगी, मालूम नहीं अब हमारा क्या अशर होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। किससे जाकर मशवरा करें कि हमें क्यों कर निजात मिल सकती है। उनमें से एक मछली खड़ी हुई जो उम्र और अकल में सबसे बड़ी थी और बोली, सिवा इसके और कोई चारा नहीं कि हम खुदा से दुआ मांगे, लेकिन पहले चलकर झींगे से मशवरा कर लें, वो हमारा सरदार है, देखें कि उसकी क्या राय है। वो हम सबसे ज्यादा साहिबल राय भी है। मछलियों ने उसकी राय मान ली और सब की सब मिलकर झींगे के पास गई। देखा कि वो अपने गड्ढे में बैठा हुआ है, उसे उनकी तकलीफ की खबर तक नहीं। मछलियों ने उसे सलाम करके कहा, ए हमारे आका, कि तुझे हमारी हालत की बिल्कुल खबर नहीं, हालांकि तू हमारा हाकिम और सरदार है। झींगे ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ और क्या चाहती हो। मछलियों ने अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा, पानी की कमी से हम पर मुसीबत आ गई है। तालाब अगर बिल्कुल सूख गया तो हम मर जाएंगी। हम तेरी राय लेने आए हैं जिससे हम बच जाएं, क्योंकि तू हमारा बड़ा और हमसे ज्यादा समझदार है। झींगे ने थोड़ी देर के लिए अपना सर नीचे कर लिया, उसके बाद कहने लगा, इसमें शक नहीं कि तुम्हारी अकल नाकस है। तुम्हें खुदा की रहमत से नाउमीदी है और इस बात को नहीं जानती कि वो तमाम मखलूक को रोजी देने का जिम्मेदार है। तुम्हें मालूम नहीं कि खुदा अपने बंदों को बगैर हिसाब के रोजी देता है, कबल इसके कि उसने कोई चीज पैदा की हो उसकी रोजी मुकर्रर कर दी है और अपनी खुदाई कुदरत से हर शख्स की उम्र महदूद और रोजी मकसूम कर दी है। फिर हम कैसे उस चीज पर गमगीन हो सकते हैं जो अभी तक गैब में पोशीदा है। मेरी राय में इससे बेहतर और कोई बात नहीं कि खुदा के आगे आजिज़ी की जाए और हम में से हर एक अपना ज़मीर साफ करके खुदा से दुआ मांगे कि वो हमें तकलीफों से बचाए। जो खुदा पर भरोसा करता है खुदा उसकी उम्मीद को बेकार नहीं जाने देता और जो उसका वसीला चाहता है वो उसे नामुराद नहीं फेरता। अगर हम अपनी हालत दुरुस्त कर लें तो हमारे सब काम ठीक हो जाएंगे और हमें भलाई और नेमतें मिलेंगी। जब जाड़े आएंगे और हमारे नेक वक्तों की दुआ से हमारी ज़मीन सैलाब हो जाएगी तो जो भलाई खुदा हमें देगा वो फिर ज़ाया नहीं होगी। मेरी सलाह है कि हम सब्र करें और देखें कि खुदा क्या करता है। अगर हमें मौत आ जाएगी तो आराम हो जाएगा और अगर कोई ऐसी बात पेश आ जाएगी कि हमें भागना पड़े तो हम भागकर खुदा जहां ले जाएगा चले जाएंगे। तमाम मछलियों ने एक जुबान होकर कहा, तू ठीक कहता है, खुदा तुझे हमारी तरफ से नेक बदला दे। ये कहकर सब मछलियां अपनी अपनी जगह चली गई। थोड़े ही दिन गुजरे थे कि खुदा ने खूब मेना बरसाया और तालाब पहले से ज्यादा भर गया। ए बादशाह, इसी तरह हम भी तेरी औलाद की तरफ से नाउमीद हो चुके थे। अब चूंकि खुदा ने हमारी खातिर तुझे एक मुबारक लड़का दिया है, हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो नेक वक्त निकले, तेरी आंखें ठंडी करे, तेरा अच्छा वारिस हो और हमारे साथ ऐसी बख्शिश करे जैसी कि तू करता रहा है। जो कोई खुदा से मकसद रखता है खुदा उसे नामुराद नहीं फेरता। किसी शख्स को खुदा की रहमत से नाउमीद न होना चाहिए। उसके बाद दूसरा वजीर उठा और उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा
वजीर ने तकरीर शुरू की कि कोई बादशाह इस वक्त तक बादशाह नहीं कहलाया जा सकता जब तक कि वो बख्शिश और इंसाफ न करे और आकाम में दरिया दिली से काम न ले। मिसाल है कि बेहतरीन बात यह है कि बादशाह को रियाया के हक में मुनसिफ होना चाहिए, उनके हकीम को माहिर, उनके आलिम को बाखबर और अपने इल्म पर अमल करने वाला। हम इन सारी भलाइयों से मुस्तफीद हैं। इससे पहले हम इस बात से नाउम्मीद हो चुके थे कि तेरा एक बेटा हो जो तेरे बाद हुकूमत करे, लेकिन खुदा ने तेरी दुआ नहीं टाली क्योंकि तेरा गुमान उसकी तरफ से अच्छा था और तूने अपने काम को उसके हवाले कर रखा था। तेरी उम्मीद कैसी अच्छी उम्मीद थी और तेरा हाल वही हुआ जो कौवे का सांप के साथ हुआ था। बादशाह ने पूछा, कौवे और सांप की क्या हिकायत है? मुझे उनकी कहानी सुनाओ। कौवे और सांप की कहानी हमारी अगली आने वाली वीडियो में सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।